मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं एक्चुअली 1 घंटे में ही आ रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे अभी तो विजिटिंग कार्ड ओपन कराओ ने अपना, आ रहे हो यार भैया यार। Yo, what's up guys? Welcome to a new video of The Mother and Son Co. And this is a very sad video, but another story time video, so kind of like exciting for you guys. सैड वीडियो, लेकिन हम लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये हादसा हो चुका है। I'm not sure if you have been following. We shifted to Bangalore and then we got 1 BHK. The link to all the videos and the playlist will be in the description, so make sure you check that out. In this house, it's been very peaceful. However, since ये घर थोड़ी सी congested area में है, तो यहाँ पे बहुत सारी आवाजें वगैरह होती है, and since we have a car as well, तो पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत वगैरह होती है, and ये सारी चीजें I face like डेली रूटीन almost daily, yeah, and I've had a fight as well 2-3 बार। तो इसीलिए एक दिन I was just done with it and I got on an app and the app is called No Broker, and I managed to find a very nice 1 BHK in a very nice society which was close to my office as well. Too good to be true. When it's too good to be true, Yeah. it is too good to be true. I'm hearing this for the first time, by the way. I think I booked the place or something like that, and Like a then viewing. yeah, and then the owner called me and he was like, hello, you are interested in this 1 BHK, why do you not come and check the place out yourself? I was like, okay, yeah, and it was a weekend at that time, so I was like, I can actually do that. So what he did was, he straight up asked me for 2,000 rupees, which was very suspicious from the start. I should have been aware. As people say in India, मेरी मती मारी गई थी उस दिन. So I guess that is what came into play. You're And too desperate when you're too desperate. so what I did was I instantly sent him, not 2000 instantly. फॉर एंट्री कार्ड। Are you Yeah. serious? हाँ, He asked for 2,000 rupees because he was going to make entry card for me and my mom, and I even clicked my photo because apparently according to him that photo was going to be put on the entry card, and then he just stopped replying. I sent him the money, I messaged him, no reply. That is when I was like, scam ho gaya. But okay, I was like, let's give it the benefit of the doubt and let's try to continue the conversation. So I kept texting him, but he was not replying. So I called him. And then he was like, I am the owner, I have given my information to the manager वहाँ का, and he will make a card and give it to you. But that never happened. 1 or 2 hours cross हुए, मैंने मम्मी को सारी चीजें बताई, मम्मी को पहले से ही पता थी सारी चीजें। नहीं मालूम था, लेकिन इसको इतना ज्यादा Yeah. बदलना मैंने कहा ठीक है भाई 2000 है, क्या पता ठीक भी हो यहाँ का सिस्टम Maybe ना। that's the system. शेडी तो लग रहा था शुरू से, शेडी लग रहा था। लेकिन जब किसी चीज की जरूरत हो ना, तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं हर नेगेटिव के लिए कि नहीं नहीं ठीक होगा, तो वही हो गया वो। And nothing was being done. I did not get the entry card as well. So since that apartment was relatively close to our place and it was a weekend, so me and mummy decided we shall dress up and directly go there to the actual entry gate, जहाँ पे they make all the cards and everything. I would just say till here because Hashtag trauma. because we have all the other things on footage, including the scammer call. Yes, it's gonna be juicy. कुछ शब्द मम्मी की तरफ से, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली में इतनी प्रैक्टिस है कि हमें मालूम है ये सब नहीं हो सकता। एक मकान देखने के लिए, एक घर देखने जाने के लिए इतना सारा प्रोसीजर कहीं भी नहीं होता। बस हम यही कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो, घर लेना है, अपना खरीदना है या रेंट पर लेना है, तो किसी भी उस पर मत जाओ, ऐप के थ्रू मत जाओ, पर्सन से मिलो डायरेक्ट। और मैं तो कहूंगी उसका आईडी भी मांग लो, क्योंकि मैं तो मांग लेती हूँ कि आप अपना आईडी दिखाइए, आप यहाँ पर कौन है। या फिर जो यहाँ मल्टी स्टोरी है वहां पर काफी सेफ है, क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिस होता है और वहां पर तो कोई चीटिंग की इतनी ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। basically do not make a UPI payment. That was very stupid of me. You can literally go to the house if someone has written too late, because that is what actually mummy and me we did. That is how we initially found the place. वहाँ पे too late लिखा था नीचे बिल्डिंग में, and हम बस घुस गए and we just talked to the guy, and that is how we actually got the 1 BHK, right? And did not like I know a bit about the story. Didn't you go there and then people said कि ऐसा होता रहता है? Oh my god, वो बताया actually नहीं वीडियो yeah. में, वो तो सारा है ना। Yeah. I'm not gonna tell that to you, but safe side में अपनी तरफ से बता देता हूँ अगर वहाँ उसको जाकर video ऐसे नहीं लगा होगी। हमारे पैरों से जमीन हो गई, हमने कहा ये तो हम वैसे सुनते थे, ये हमारे साथ हो ये गया। हमारे साथ हो गया। एंड उसी समय जब हम बात कर रहे थे अपनी, एक और बंदा आया और अच्छी खासी गाड़ी में आया, वो भी मेरी तरह ही था, अच्छे खासे खाते पीते खानदान का था। उस भाई के साथ भी सेम चीज हुई So है। it doesn't mean you are smart
Anybody Yeah. can trick you. Anybody और can वो trick you. कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट नहीं है, यहाँ हाँ. का नंबर 1 मानव अपार्टमेंट, Manav वाइटफील्ड apartment. रोड का. And then I remember contacting them, but all they did was they just asked for a review. तो I just straight up said कि यार मेरा रिव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं किसी को ये ऐप रेकमेंड नहीं करूंगा, Through ये the वो website. वगैरह वगैरह. हाँ. But yeah, now you can Learn from our mistakes. learn from our mistakes and actually watch the videos उस दिन की and my talk with the scammer. Yeah. हाँ. तो 99 माइनस हो जाएगा, 6000 में आपका ऑन कॉल पे वापस रिफंड डाल दूंगा, उसके जस्ट में आपका विजिटिंग कार्ड आ जाएगा। अच्छा, पर मेरे को 6000 मिलेगा भी नहीं वापस जब मेरी विजिटिंग पर्पस खत्म हो जाएगी? सर जी ये तो आपका अभी मैं लाइन पे ही रिफंड डाल दूंगा 6000, और उसके साथ आपका विजिटिंग कार्ड आ जाएगा और आपका 2000 से डिपॉजिट रहेगा, वे भी आपका रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। सर का प्रॉपर्टी लाइक नहीं होता है, वे भी आपका रिफंड दे दिया जाएगा। अच्छा, और ये प्रेस्टीज शांति निकेतन के लिए है? जी ये प्रेस्टीज शांति निकेतन के लिए है? जी। अच्छा, फ्लैट का नंबर क्या रहेगा ये? मैं आपको पूरा फ्लैट नंबर, गली नंबर, बिल्डिंग नंबर, पूरा डिटेल मैं आपको विजिटिंग कार्ड में दूंगा। लाइन पे आपको विजिटिंग कार्ड सर, आज का शनिवार है, कल का संडे है सर, काफी विजिटिंग कार्ड मेरे पास पड़े, ये भी कंप्लीट करना है सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ पे अभी आ जाता हूँ और फिर वहीं पे आके मैं पेमेंट करता हूँ, ऐसा हो पाएगा? सर जी ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन आपका विजिटिंग कार्ड चल रहा है, ये अपना विजिटिंग कार्ड ओपन कराओ सर। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? विजय कुमार। और आपका डेजिग्नेशन क्या है? जी आपका डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे? सर जी मैं पूरा एड्रेस आपको विजिटिंग कार्ड में ही दूंगा सर। नहीं, आपका डेजिग्नेशन क्या है? आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? सर मेरा काम ही यही है कि मैनेजर हूँ मैं, विजिटिंग कार्ड कंप्लीट करता हूँ, चाहे वो पीजी हो, अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, सबका विजिटिंग कार्ड मेरे पास कंप्लीट होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को एक बार अपना आईडी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जिस पे आप मेरे को मेरा विजिटिंग कार्ड भेजेंगे। सर अपना विजिटिंग कार्ड ओपन कराओ, सर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी विजिटिंग कार्ड में मिलेगा आपको लिंक में। नहीं, आप पहले मेरे को वो भेज दीजिए। अपना ओनर से बात कर लो, ओनर से अपना डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक है? बोल देना विजय कुमार मैनेजर का कॉल आया है, मेरे पास 6099 क्लिक हो रहा है। ओके? मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं एक्चुअली 1 घंटे में ही आ रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे विजिटिंग कार्ड ओपन कराओ नहीं अपना, आ रहे हो यार भैया यार, मुझे और भी विजिटिंग कार्ड कंप्लीट करना है ना। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तभी तो आपके लिए एंट्री मिलेगा, तो मैं वहाँ नीचे सिक्योरिटी पे आऊंगा तो उनको भी तो पेमेंट कर सकता हूँ मैं या नहीं? उन पे क्यों कर सकते? विजिटिंग कार्ड तो मैंने आपका ऑनलाइन दे रखा है ना, ये कंप्लीट कराओ अपना। फिजिकल नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है सर, आज कल का संडे है, आज का शनिवार है, 11 विजिटिंग कार्ड मेरे पास एक्स्ट्रा करा, ये भी मेरे को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि बेटा मुझे आपका पेमेंट रखना है, ये लाइन पे मैं आपका पेमेंट रिफंड डाल दूंगा, उसके जस्ट में आपका विजिटिंग कार्ड आ जाएगा। और कितना अमाउंट बोल रहे हैं आप? 6099। 6099। जी और मैं 2000 एक्चुअली पहले ही दे चुका हूँ, और वो विजिटिंग कार्ड के लिए बोला था मेरे को, ओनर के लिए। सर जी जो आपका 2000 है ना, ओनली बेटा आपका वही डिपॉजिट रहेगा, वे भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है। सर का प्रॉपर्टी आपको लाइक नहीं होता है, वे भी आपका रिफंड दे दिया जाएगा हार्ड केस में। और जो 6099 मैं आपसे बोल रहा हूँ ना बेटा, इसमें से 99 रुपए में विजिटिंग कार्ड डाल दूंगा और 6000 में आपका ऑन कॉल पे वापस रिफंड डाल दूंगा। इतने तक मैं आपको लाइन पे ही रखूंगा, इतने तक आपके पास 6000 रिफंड नहीं जाएगा और विजिटिंग कार्ड। इसलिए मैं लाइन पे पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर लेना, नो प्रॉब्लम, हमको भी आगे जवाब देना होता है। 6000 तो नहीं, क्योंकि मैं 2000 पहले दे चुका हूँ, मेरे को ये 6000 का नहीं बताया ओनर ने, मैंने जो डायरेक्ट ओनर से बात करी है। सर जी ओनर को ये पता नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में विजिटिंग कार्ड बना, मेरे को पता है कि फर्स्ट टाइम में विजिटिंग कार्ड बन रहा है, ये ऑनलाइन आपका विजिटिंग कार्ड दे रखा है, इसमें 1 मिनट के लिए ट्रांजेक्शन शो कराना होता है, आपका नाम पर विजिटिंग कार्ड ओपन हो जाएगा। नहीं, पर उन्होंने मेरे को 2000 बोला है और मैं 2000 सेंड कर चुका हूँ पहले ही। सर जी मैं आपसे जिद बहस नहीं कर सकता हूँ, अपने ओनर से बात कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। वो ओनर जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप उनसे बात करो, उठा लेगा, वो अर्जेंट में मीटिंग में चल रहा है। वैसे भी और वीडियोस आएंगी कि अगर आपको अपना यहाँ पर घर लेना है तो किस तरीके से लेना है, क्योंकि यहाँ जहाँ अब हम रह रहे हैं
इसका जो भी प्रोसीजर था मैंने काफी रिकॉर्ड किया है, तो उसकी वीडियोस बहुत मेहनत से बनाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत, बट या दैट इज फॉर अ डिफरेंट वीडियो. बट राइट नाउ जस्ट लाइक वॉच एंड लर्न एंड डू नॉट डू व्हाट आई डिड. अब मैं यहाँ इनकी मेन एंट्रेंस पर बैठी हूँ और यहाँ इन्होंने बताया है कि उसी स्कैमर से ठगे हुए यहाँ पर 5-6 लोग आ चुके हैं. यहाँ लड़ाई भी हुई है, फाइट भी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता. अब तो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है भास्कर की पेटीएम से पेमेंट दिए तो एटलीस्ट हमारे वो 2000 रुपये ही हमें मिल जाए तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी. और उसके अलावा जो उसने और 6000 मांगे हम एटलीस्ट उससे तो बच गए. ये मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि आप देख सकें कि हाँ वाकई ये शांति निकेतन जो यहाँ का बहुत अच्छी जानी मानी जगह है उसके नाम पे स्कैम चल रहा है. क्या पेटीएम का किया तूने? मैजिक ब्रिक्स वाले ही थे, वो कह रहे थे कि सर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. मैंने कहा मैं आप मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे 2000 रुपये वापस दिलवा के, क्योंकि मेरे साथ अभी स्कैम हुआ है. अच्छा. वो बंदा एकदम से रुक गया, आई एम सॉरी सर. फिर वही सारी बातें वगैरह हुई, उसने मेरे को कस्टमर केयर का नंबर दिया, तो अब हम उस पर कॉल करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है. लेकिन जल्दी नहीं करेंगे तो वो तो पैसा तो गया, वैसे भी मुझे लगता है पैसा तो गया है ना. तो फिर अब क्या करें, चलें यहाँ से. तो आज जितना होमवर्क हो सकता था हमने कर लिया है ना. प्लीज़ आप लोग अलर्ट हो जाइए इस चीज़ से और हम हाउस हंटिंग करेंगे. सारे ही लोग ऐसे नहीं होते हैं. हमारी गलती थी कि हमें जहाँ भी पैसे की बात आई वहाँ पे रुक जाना चाहिए था. ये दूसरा जमतारा बन रहा है. अब देखो नया स्कैम चालू हो गया है. वेरी सैड. अच्छा, जो उसने पिक्चर्स डाली हुई हैं फ्लैट की, वो सब कहाँ से ले लेते हैं ये लोग ना? ऑनलाइन से ले ली होगी उसने. पूरे अंदर के घर की फोटोज दिखाई हुई हैं, वो सब कैसे ले लेते हैं ये लोग? हद है, किसी और लिस्टिंग से उठा ली होगी. हाँ कुछ तो करते हैं. और एड्रेस नहीं है उसमें घर का. हाँ एड्रेस नहीं है, यूनिट नंबर वगैरह नहीं. हाँ यूनिट नंबर नहीं था, हमने पूछा तब भी नहीं बताया उसने. चलो, जब दिमाग ख़राब होना होता है ना तो सारी चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं. हम पॉजिटिव रहे और उस वजह से ये सब हो गया है. तो हम यही चाह रहे हैं कि और कोई इस चक्कर में ना फंसे, एटलीस्ट उसके पैसे इस तरीके से वेस्ट ना हो. और जो एक हरासमेंट फील होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है. Okay. Before the video ends, I would like to share some screenshots of the conversation and the transaction I made to the scammer. So first of all, this is the listing of the 1 BHK on the app. Both these screenshots are the listing wale. So here in this screenshot, I sent him mera DL after he asked for it on the call. Then he sends me his UPI scanner, which actually does not work. As you can see here, I made that 2000 initial payment जो नहीं गई. I sent him that and then he sends me another UPI scanner of his जो ये वाला है. So I made him another payment which went through. And then he also gave me his bank details because he was that much desperate. And then he says that he needs 100 rupees again more. So I made that payment as well. उसके बाद I asked him कि when will you send me the visitor pass, but then he just didn't reply. And then after that, manager वगैरह से भी बात करके, the clips you've seen, I finally came to realization that I just got scammed. And that is going to be it for this video. I hope you guys enjoyed and learned something. Remember, keep that in your mind. Please give some तुमने sympathy लर्न likes. किया कि डेस्परेट नहीं होना, पेशेंस रखनी है, Yeah. सब कुछ हो जाता है. Exactly. Yes. So please give some sympathy likes. Please. Do not forget to hit the thumbs up and subscribe button and share this with everyone because scam can happen everywhere. जरूरी नहीं है सिर्फ बैंगलोर में ही हो. This can also happen in Delhi because जैसे ही हम नोएडा शिफ्ट हुए थे वैसे ही आपको एक पेटीएम से स्कैम कॉल आई थी. We have also made a video of that. That will be in the description as well. So yeah, scams are like all over the world. So just be aware and सतर्क रहिए. सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए. Yeah. Bye.